Good morning, students. So today we are going to start the third chapter, that is gravitation, and this is the last lesson before your midterm exam, and that too is not in total chapter. We have to cover only the first half of the chapter. The second half is not coming in your midterm exams. Gravitation. See, you always observe that everything that we throw in the upward direction comes downward of its own. कोई भी चीज़ जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे आ जाती है. कोई भी चीज़ अपने ऊपर नहीं जाती है बट नीचे अपने आप आ जाती है. दिस मीन्स देर इज सम फोर्स इन द अर्थ which pulls every object towards its center, and that force is called gravitation. See, gravity and gravitation are two different forces. Gravity and gravitation. There is a slight difference between gravity and gravitation. Gravity is the force of attraction between Earth and any other object. Between Earth and any other object, right? And gravitation is the force of attraction between any two objects. Gravitation is the force of attraction between any two objects, whereas gravity is the force of attraction between Earth and any other object. It means gravity is gravitation, but gravitation is not gravity. Okay, थोड़ा और डिस्कस करते हैं. Let us read this activity. The stone moves if you tie a stone with a rope and try to move in the circular path as shown in the figure. The stone moves in a circular path with a certain speed, but its direction of motion changes continuously. जैसे हमने circular motion में पढ़ा था, when the body moves in a circular motion with a certain speed, but its direction is continuously changing. As the direction is continuously changing, therefore its speed is also continuously changing, because speed is a vector quantity, and magnitude change हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो तो वेलोसिटी में चेंज आता है. ऑल्दो स्पीड यहाँ पे सेम है लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. व्हेन द बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ तो वेलोसिटी में कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है. सो द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन इन्वॉल्व चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन ऑफ द स्टोन. द एक्सेलेरेशन, द इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स F that causes this acceleration and keep the stone moving uniformly in the circular path is acting towards the center of the circular path. यानी जो फोर्स लगती है जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए चाहिए, दैट फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. तो वो जो फोर्स है वो इधर लगती है टुवर्ड द सेंटर, और इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटे? सेंट्रीपिटल फोर्स. सो and keep the stone moving uniformly in a circular path is acting toward the center of the circular path. This is called the centripetal force. That is the center seeking force. At any instant, if we release the string, अगर हम ऐसे इसको घुमाते हुए इसको छोड़ दें कभी भी, तो ये जो स्टोन है ये सर्कुलर पाथ को टेंजेंट बनाता हुआ निकल जाएगा. If we release the string, the stone flies along the tangent to the circular path. ऐसे निकल जाएगा. जैसे ये सर्कुलर पाथ है और अगर यहाँ पे हम स्टोन को छोड़ते हैं ऐसे तो ये ऐसे टेंजेंट बनाता हुआ निकल जाएगा. दिस इज़ बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द स्ट्रिंग इज़ रिलीज, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नो लॉन्गर प्रोवाइडेड. जैसे हम इसको छोड़ेंगे, अभी आप इसको सेंट्रीपिटल फोर्स आप दे रहे हो बिकॉज यू आर रोटेटिंग द स्टोन विद योर मसल्स, एंड देयरफॉर यू आर प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स. जब आप फोर्स लगाना छोड़ देंगे तो इस तरह से जिस भी इंस्टेंट पे छोड़ेंगे वो इस तरह से टेंजेंट बनाते हुए स्टोन जो है वो नीचे गिर जाएगा. एंड द मोमेंट द स्ट्रिंग इज रिलीज, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज नो लॉन्गर प्रोवाइडेड, द स्टोन इज फ्री टू फ्लाई ऑफ अलॉन्ग द टेंजेंट. एंड इसी के ऊपर जो बेस एक्टिविटी है वो क्या कहते हैं? द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द force of attraction of the earth on the moon.
कहते हैं मून भी जब अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है, वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ गिवन टू द मून बाय द gravitational force of the earth. Similarly, all the planets of our solar system revolve around the sun, and the centripetal force must be acting on each planet provided by the force of attraction of the sun. उसी तरह से पूरे सोलर सिस्टम में जब सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं तो दे ऑल्सो रिक्वायर्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द sun, gravitational force of the sun to each planet. And from these observations, Newton concluded that it is not only the earth which attract an apple and the moon, and it is not only the sun that attract every planet, rather every object in the universe attract every other object, and this force of attraction is called gravitational force. So gravitational force is the force of attraction between any two objects in the whole universe, whereas gravity is the force of attraction between earth and any other object. So what is gravitation? Let us elaborate on gravitation. Suppose there are two objects A and B. This is two objects A and B having masses m1 and m2, and r is the distance between them. Let r is the distance between them. Consider two objects A and B having masses m1 and m2. Let r be the distance between them. So according to universal law of gravitation, what is universal law of gravitation? What is universal law of gravitation? That every object in the whole universe attract every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. According to universal law of gravitation, the force of attraction between any two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. मतलब जैसे मान लो ये दो ऑब्जेक्ट हैं m1 m2, इनका मास है और इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा. और अब आपको मालूम है जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा. तो f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर g इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. g इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और बाकी तो पता ही है, f फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गया, f फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 मासेस हैं और r उनके बीच का डिस्टेंस है. और कांस्टेंट की वैल्यू होती है तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. कैसे पता लगता है? यूनिट्स भी कैसे निकालते हैं देखो. f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है ना, तो यहाँ से आप g के लिए निकालो तो g क्या हो जाएगा यहाँ पे fr स्क्वायर, ये fr स्क्वायर अपॉन m1 m2. तो देखो जी एफ जो है वो न्यूटन होता है, एफ फोर्स का यूनिट न्यूटन है, और आर जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया. ये मास है, ये भी मास है, के जी इंटू के जी स्क्वायर हो गया. तो फिर जी का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर. और वैल्यू तो मैंने आपको बताई दी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11. ये याद ही रखनी पड़ती है बेटे. आपको ये वैल्यू कहाँ से आई, ये तो कैलकुलेट नहीं हुई, कहाँ से आई? क्योंकि हर एक कांस्टेंट जो वैल्यू, कांस्टेंट का मतलब ही क्या है? उसकी वैल्यू फिक्स होती है. तो इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, कैपिटल जी को, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है. और वो वैल्यू कितनी है? 6.67 10⁻⁻11. ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन.
तो देखो सबसे पहले न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया था, ये बड़ी फेमस स्टोरी है। ही वॉज सिटिंग अंडर एन एप्पल ट्री एंड ही सॉ एप्पल फॉल्स ऑन द ग्राउंड, अनदर एप्पल फॉल्स ऑन द ग्राउंड, देन ही थॉट that why every apple is falling towards the earth, not even a single apple move in the upward direction, that there must be a force in the earth that attract every object in the towards itself. Therefore then he observed or applied his observation on every object, and he finds that there is a force of attraction between every object. And then he gave the concept of gravitation and gravity. Gravity is the force of attraction between earth and any other object, whereas gravitation is the force of attraction between any two object. यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन आता है, और वो ये है कि अर्थ पे तो हमें सारी चीज़ें फॉल करते हुए दिखाई देती हैं. वी कैन सी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between earth and any other object because everything is falling towards the earth. लेकिन ग्रेविटेशन के हिसाब से, यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से हर चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. लेकिन हम कभी नहीं देखते हैं कि कोई भी, जैसे मान लो कोई टेबल और चेयर है, और टेबल और चेयर एक क्लासरूम में पड़ी है, तो ना तो टेबल अपने आप चेयर की तरफ चलती है, ना चेयर टेबल की तरफ अपने आप चलती है. जबकि लॉ के हिसाब से इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ऑफ कोर्स उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हुए कभी नहीं दिखाई देते, जबकि अर्थ की तरफ चीज़ें मूव करते हुए दिखाई देती हैं. क्योंकि जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है. वो इतना कम होता है कि उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाता. और जबकि अर्थ और किसी और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. इस वजह से वो अट्रैक्शन दिखाई देता है. इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी दिखाई देगा जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा. काफ़ी ज़्यादा से मतलब कम से कम दोनों में से एक ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा होना चाहिए. और अर्थ का मास तो आपको पता है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई बॉल है, एक बॉल के कंपैरिजन में या एक फुटबॉल के कंपैरिजन में अर्थ का मास तो बहुत ज़्यादा होता है. एंड दैट्स वाई अर्थ और उस फुटबॉल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसीलिए वो अट्रैक्शन दिखाई देता है, वो एक्सेलरेशन दिखाई देता है. द बॉल इज़ मूविंग, द फुटबॉल इज़ मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ. इस तरह से और भी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, अगर हम एक तरफ एक ऑब्जेक्ट अर्थ लें और दूसरा ऑब्जेक्ट कोई और ऑब्जेक्ट लें जिसका मास बहुत कम होता है, लेकिन दोनों में से एक ऑब्जेक्ट यानी अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है. इसलिए वो एक्सेलरेशन हमें दिखाई देता है, चीज़ें अर्थ की तरफ मूव करती हुई दिखाई देती है. रादर जब बाकी कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका आपस में मास सेम होता है, जैसे 1 kg 5 kg या 2 फुटबॉल हैं या 2 बॉल्स हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है. ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है. दुनिया की हर दो चीज़ के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है. इतना नहीं होता कि वो एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर दें. तो उसके लिए एटलीस्ट दोनों में से एक का मास बहुत ज़्यादा होना चाहिए. बहुत ज़्यादा का मतलब जितना अर्थ का मास होता है उतना ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके वो अट्रैक्शन दिखाई देता है. देन वी हैव डिस्कस्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड देयर यूनिट्स. वैल्यू जी की वैल्यू कितनी है आपको मैंने बताया, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं, द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पहला इंपॉर्टेंस, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑल द टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ. यानी अर्थ के ऊपर जो भी चीज़ है वो अर्थ का पार्ट है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन. यानी किसी भी प्लैनेट पे लाइफ होने के लिए ग्रेविटेशन होना, राइट ग्रेविटेशन फोर्स होना बहुत ज़रूरी है. जो एटमॉस्फेरिक गैसेस भी हैं वो भी ग्रेविटेशन की वजह से रुकी हुई हैं. यानी अगर राइट ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती अर्थ में तो जितनी भी गैसेस हैं इंक्लूडिंग ऑक्सीजन वो अर्थ पे नहीं होती, और ऑक्सीजन नहीं होती तो फिर हम भी नहीं होते. कार्बन डाइऑक्साइड ना होते तो प्लांट्स ना होते, और प्लांट्स नहीं होते तो ऑक्सीजन नहीं होती.
तो जितने भी चीज़ें अर्थ के ऊपर हैं, इवन वाटर भी जो है वो भी, या पूरा एनवायरनमेंट जो है, एनवायरमेंटल गैसेस जो हैं वो सब अर्थ पे ही रहती हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग एटमॉस्फेयर. ये मैंने बता दिया अभी आपको. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल. पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है एंड कम बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन. द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. पानी हमेशा हिल से रिवर्स की तरफ और अल्टीमेटली सी की तरफ जाता है, अगेन बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ on account of the gravitational pull. All the planets revolve around the sun because of the gravitation. The tides formed by the rising and falling of the water in the ocean are due to the gravitational force. So these are the importance of universal law of gravitation, right? So today we have discussed two things. What is gravity and what is gravitation, and what is centripetal force. And whenever a body moves in a circular path, it requires a force, and that force acts always towards the center of the earth, and that force is called the centripetal force, right? So whenever all the planets moves around the sun because of the centripetal force of the sun, and the satellite moves around the planet because of the centripetal force of the planet provided to the satellites. And then what is universal law of gravitation? The expression of universal law of gravitation is force of attraction between any two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. एंड जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट है जी, जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. एंड यू ऑल्सो come to know the importance of universal law of gravitation. So with this we conclude today's lesson. We'll continue to discuss